जाग उठा है सारा वतन, मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदो। आज मजनून जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दोजन सर से बांधे कफन, साथ है मर्दोजन सर से बांधे कफन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inna dina indallahil Islam. Islam is only Allah's religion. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल जान नासिर अली शाह अपने प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। उस सूरत हाल पे है जो कि दुनिया में हालात कितनी तेज़ी से बदले हैं तुर्की के अंदर। आज का हमारा प्रोग्राम तुर्की में जो कू हुआ है, जिसे मिलिट्री ने करने की कोशिश की और आवाम ने उसको किस तरह से नाकाम बनाया, उस पर प्रोग्राम होगा और उसके तासुरात पाकिस्तान पर और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर क्या बड़े पड़ेंगे, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का हिस्सा ये लेके आगे बढ़ूं, पाकिस्तान में कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहे थे, उनकी फिल्म चलाई जा रही थी, उससे पहले ईदी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे। कई घंटे, कई आवर, कई दिन और आज तक ईदी पर डिस्कशन हो रही। उससे पहले अमजद साहब भी, कवाल साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे। कई घंटे, कई दिन मीडिया को तो एक खबर चाहिए। अब वो कश्मीरी सारे बैक बर्नर पे चले गए हैं और ये तुर्की की खबर को मीडिया खबरें बेचता है, इनको किसी का एहसास नहीं होता। इन्होंने तुर्की को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा है। ठीक है, खबर दे दे। अमेरिका में भी खबर आई है, CNN ने खबर दी है, ABC, NBC, ऑल न्यूज चैनल इन अमेरिका कवर्ड, बट दे डिड नॉट ब्लॉक द इंटायर डे, ब्लॉकिंग ऑल ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन टर्की। इट्स अ न्यूज, दे गिव अ न्यूज एंड दे कैरी ऑन। बट इन अवर कंट्रीज दिस इज अ हैबिट. You grab something, you rub it and you rub it and you rub it until it becomes a cancer. That's the problem. Turkey में जो हुआ यह अच्छा नहीं हुआ. Any martial law is not good. Democracy is best. But what happened when you have crook and corrupt politicians like Pakistan? America has one of the best legal system. Why there's never a martial law in America? Because America is a government of the people, by the people, for the people. And people do have differences in America. Don't say the American people don't differ with their politicians. Yes, they do. When that happens, and American people are so intelligent, they go in a polling station, they vote and vote this person out. That is the proper way of doing. They don't start coming on the street and throwing the rocks and burning the cars and breaking the windows, and kidnapping and cussing and fussing. No. They do civilized way. They have seminars, they have meetings, civic meetings. This is how things runs in America. It's one of the best way. Why can't Pakistan follow Britain, America, Australia, New Zealand, the way they run the countries? Of course, when America go after any country, because of national security of the United States, there's nothing wrong with that. The President of the United States is 100% right. He have duty to go after those people who want to harm the American citizen or who want to destroy any facilities in America or who want to go after the armed forces of the United States. Nothing wrong with the Congress saying yes. Nothing wrong. People, that's the reason American people always stand behind the armed forces. Have you ever said American is not standing behind the armed forces? They love because they know these people who are soldiers who are fighting for us, they are protecting red, white, blue flag in our country. That's the reason. Pakistan में भी यही है. People of Pakistan same way protects the armed forces. लेकिन ये तुर्की में हुआ है, ये तुर्की में जो हुआ है,
इसको सियासतदानों ने किसी और निगाह से ले लिया। वो ख्वाजा आसिफ का बेटा जो ख्वाजा सफदर का बेटा ख्वाजा आसिफ जो है, माफी चाहता हूं, उसने इसको क्या रंग दिया। उन्होंने कहा, बहुत से पॉलिटिशियन ने ये कहा कि आर्मी शुड टेक नोटिस ऑफ दिस। अब वो क्या मिलिट्री को बता रहे हैं कि हम भी अवाम को इस तरह से लाके टैंकों के सामने लिटा देंगे। नाज़रीन, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। किराए के लोग आपको सभी जगह से मिल जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर करप्ट हुक्मरान है। जो पैनामा लीक सिस्टम केम एंड प्राइम मिनिस्टर डज नॉट वांट टू रिजाइन, जब मेरा पुटना जी पुट लो, व्हाई कैंट इमरान खान अंडरस्टैंड he does not have a power to bring people on the street. So what he will do, they will use, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई है कि जब तुर्की में हुकूमत को ओवरथ्रो किया गया तो तुर्किश प्रेसिडेंट जब ऑन सोशल मीडिया के जरिए आवाम के सामने आया कि सड़कों पर और हुकूमत वापस लो, वाई द पीपल केम, बिकॉज दे लव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की, दे लव द वे द टर्किश गवर्नमेंट वाज रनिंग, बिकॉज पिछले 10 सालों में टर्की की हुकूमत ने साबित किया है कि उन्होंने टर्की को कैसे तरक्की दी है। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या साबित करेंगे? हमने बिजली और कैसे कम की है, हमने करप्शन कैसे की है, हमने लैपटॉप बांटे, हमने कर्जे दिए और 10 मिलियन का जो मंसूबा था 100 मिलियन में कैसे कर दिया है, हमने अपने जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे उनको क्या क्या बांटा है। क्या कहेंगे ये? हमारे वडेरों ने कितने मजारों को मारा है, हमारे मलकों ने, चौधरियों ने, हमारे थानेदारों ने बूढ़ों को कैसे सड़कों पे चपेटे मारी है, मारते हुए रिक्शा ड्राइवरों को खींच के जेलों में कैसे ले गए। ये साबित करेंगे कि हमारी हुकूमतों ने ये किया। मॉडल टाउन में कत्ल होते हैं, उसकी IFR नहीं काटी जाती, और जब काटी जाती है तो उसमें उसका मुकदमा, उसकी कोई चीज सामने अवाम के नहीं लाई जाती। ये पेश करेंगे आप? क्या करेंगे? इसको दूसरी निगाह से देखते हैं। ये साथ साथ जो फिल्म चल रही है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं टर्की के में अंदर क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ। ये पूरी दुनिया के सामने ये इसकी तस्वीर पड़ी, सारी दुनिया इसको देख रही है। इससे सबक सीखना चाहिए, सियासतदानों को भी और दूसरों की। आप मियां नवाज शरीफ सब क्या सोचते होंगे? यहां पर ह्यूस्टन में भी कल एक उनका चाहने वाला है यहां पर, जो हर बात में, क्योंकि मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि आई डोंट वांट टू गिव हिम एनी माइलेज आउट ऑफ दिस। उनको अंदाजा नहीं कि हमारे मुल्क के सियासतदान, हाउ करप्ट द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान आर, दे आर द करप्ट पीपल। हमें फॉर इफ एनीथिंग हैपन इन पाकिस्तान वी विल से ऑलवेज से अमेरिका इज बिहाइंड हिम, इजराइल बिहाइंड हिम, अमेरिका। तो इजराइल अमेरिका हैड टाइम जस्ट गोइंग आफ्टर बट लिटिल बिटी शिटी थिंग्स? नो, दे डोंट। बट हमारे वो मुल्ला जो है ना, बिग बियर, 3 फुट के कट पे 8 फुट की दाढ़ी वाला मुल्ला, वो हमेशा, दे ऑलवेज ब्लेम यूनाइटेड स्टेट्स, दे ऑलवेज ब्लेम इजराइल। यस, देयर आर टाइम्स that America is get involved. There are times when the Israelis and other countries get involved for the security and national security of their country. But they don't have time to go after all. The Israelis don't have time to go after tiny many things or every tiny many country. Why? Yahudo Nasara, Yahudo Nasara, Yahudo Nasara, Yahudo Nasara. Yes, Prophet Muhammad say you cannot trust Yahudo Nasara. But उसके बाद क्या था, ये उससे पहले क्या था, ये भी तो बताओ कि उसकी वजूहत क्या थी। हजूर ने तो सबसे ज्यादा कारोबार यहूदियों के साथ किया। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मोस्टली ऑफ हिज बिजनेस वाज विद ज्यूज व्हेन ही सेड डू नॉट ट्रस्ट यहूद और नसारा। लेकिन उससे पहले की वजह क्या थी और उसके बाद की क्या थी, मुल्ला आपको ये तो बताएगा नहीं। जैसे 3 तलाकें, कभी एक टाइम पे 3 तलाकें होती है, ड्रामेबाजी इस्लाम को बदल के रख दिया है। 400-600 साल के बाद हदीस आई थी, हदीस में ये है, हदीस में वो है, हदीस में ये है। मैं ये नहीं कहूंगा हदीस गलत है, क्योंकि मेरे ऊपर कुफर का फतवा लग जाएगा। अब बड़ी सिंपल सी बात आपको मैंने पिछली दफा भी बताई थी, एक औरत के साथ ज्यादती होती है। हमारे अंदर क्या है, लॉ क्या है, इस्लामी लॉ क्या है कि वो दो गवाह लेके आए। कहां से औरत गवाह लेके आए? क्या वहां 2 बंदे या 2 मोहल्लेदार या 2 राहीगीर या 2 दुकानदार बैठे हुए देख रहे थे कि इसके साथ ज्यादती हो रही है? कहां से लेके आए वो? उस जमाने में लॉ कुछ और थे। हजरत उमर बिन खुत्ताब या हजरत अली या उस्मान गनी या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा या जो भी उनके खलीफा थे उसके बाद जो आए या जो भी इमाम आए, वो सच्चाई को समझ जाते थे, परख जाते थे। आजकल तो सबसे बड़ी करप्टी हुक्मरान है, अदालतें हैं, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट द बिगेस्ट करप्ट इन दीज डेज इन पाकिस्तान एंड पॉलिटिशियंस एवर हैव यू। हाउ दे आर गोइंग टू लेट अ वुमन ब्रिंग 2 witnesses that you've been raped? Where is she going to get 2 witnesses? God sake, use the forensic evidence.
साइंस ने तरक्की कर ली है, साइंस ने तरक्की कर ली, आप जहाज में उड़ के आएंगे, लेकिन उस जमाने पे तो ऊंटों पे लोग सफर करते थे, दाढ़ी वाले मुल्ला ऊंटों पे सफर क्यों नहीं करते हो? यू डैम लाउजी मुल्लास ऑफ beards, why don't you travel on the horses and camels? Why you fly the plane? This is the Western technology. Why you use the Western technology? Because you have no choice. Why don't you take the boat? Boom, 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 boom. I'm going by boat to America. I'm going by boat to Saudi Arabia. No, you're going to use the Western technology to fly by plane, to fly by jets, and fly by Airbuses. But you're not going to use civilized way of living life. You're going to get the maswak in your hand and the Qur'ans in your palm, in your feet. This is how you want to live. This is ridiculous. औरत को तमाशा बना के रख दिया. Women had a problem in America too. They were not able to vote in the United States. Black was not able to vote in the United States, but what people did. Of course, there's lots of agitation happened in America. Civil war, civil rights movement, full of it. But civilized people sit down on the table and talk. Ted Poe, for example, of a congressman here, he's talking very bad about Muslims and against Pakistan, don't give a damn to Pakistan and everything. Did anybody took a time to sit down with Congressman Ted Poe and try to explain him, Congressman? If it wasn't Pakistan, US would be so severely kicked in Waziristan and Taliban in Afghanistan. Pakistan saved your butt. Now I heard the embassy have contacted him, give some. Where was ambassador before? This is the job of Democrat. This is a job for diplomatic people, the embassies. Where was our embassy? Where was our ambassador? Where was our consular? Photo session में मसरूफ थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे. मेरे दफ्तर में आओ, मेरे दरवाजे खुले हैं, आके चाय पियो. उसके अलावा कर क्या रहे थे? और पाकिस्तान तस्वीरें भेज रहे. देखिए जी, मैं तो कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूं. इन काउंसलरों को, इन काउंसलेट्स को, इन एम्बेसडर को बदलिए अमेरिका से और सही वाले एम्बेसडर लेके आइए. दिस इज जॉब ऑफ एम्बेसी टू लेट द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस नो how many people in Pakistan die, what we have done for America, how we have saved the democracy in many different countries, how we have saved the citizens of many different countries, how we have saved the money, how much money we, millions and millions and millions and millions of dollars, Pakistan Armed Forces has saved to the United States and saved the life of American soldiers so they can safely return back home. We don't have time for this to explain to Congress. Then why we blame America? America did this, America did that, America. What we did nothing. If we did everything right, why don't we go to the United States Department and sit down and explain them? Hey, State Department, look what we had done for you. American civilized people, they'll sit down and listen to you because they know you're a bunch of stupid cowards. Your politicians are crook. Look what happened in Srinagar. They're killing people in Kashmir, and all you hear one statement from the State Department. This is an internal matter of India and Pakistan. They both get to sit down and talk. Why don't the East and more they sit down and talk? Why world intervene? You want children to be killed? I'm going to do a special program on this. Watch this special program. I'm going to show you, US Congress, Parliament of Britain, and all civilized world how terrorist India is. Stop supporting India. Narendra Modi is a known criminal. He's a known terrorist. State Department was right when they refused him a visa. Don't. I understand he's the Prime Minister of India. But look, now, same link. Situation with Turkey. Turkey may be bloodshed hota. There's only 100 and some people got arrested, 50 or some people die in Turkey to do this. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में क्या होंगे? पाकिस्तान में बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं कि पाकिस्तान के नाअहल हुक्मरान किराए के लोगों को मिलिट्री के सामने लाकर सड़कों पर लिटा देंगे. मिलिट्री कैन नॉट फाइट सिटीजन्स. हमारी फौज इतनी जालिम नहीं कि अपने अवाम को कुचल दे. बड़े संगीन हालात. लेकिन इसको दूसरी तरफ ले जाते. नवाज शरीफ साहब या कोई भी करप्ट हुकूमत इज नॉट चेंजिंग. वो चेंज नहीं करते. सियासतदान प्रेशर डालते हैं क्योंकि ऐसा सियासतदान है पाकिस्तान में जिसके कहने पे करोड़ों लोग शायद सड़कों पे आ जाएं. खरीदने पड़ेंगे. हाँ, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या जमात इस्लामी हो या कोई भी जमात हो.
हाँ, वो दहशतगर्द जो लंदन में बैठा है उसके लोग आ जाते थे उसके कहने पर, अब वो भी नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर उसकी असलियत खुल गई है कि वो शराब के नशे में बोलता है, वो ऐसे बोलता है और वो कत्लो गारत और लाशों की सियासत करता है। आवाम को समझ आने लगी है। इसीलिए when Iltaf Hussain called for strike in Pakistan, the shop were not closed because Rangers said, we are going to protect you, keep it open. They were opened. So what happened? Now, if the politicians come, call the people and they come on street, अगर पाकिस्तान के 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख अवाम लाहौर में 5 लाख, 2 लाख भी 50,000 भी अगर निकल आए और रायविंड की तरफ जाकर मियां नवाज शरीफ को उठा ले, और जिस तरह से गार्बेज के ट्रक में तुर्की में उन्होंने अपने वो गंदे सियासतदान जो करप्ट उनको फेंका था, मियां नवाज शरीफ को उठा के भद्रवाह में फेंक दें, तो मियां साहब आप क्या करेंगे? और आपके बीवी बच्चों को सबको उठा के भद्रवाह में फेंक दें तो आप क्या करेंगे? कहते हैं मोदी को यार को एक धक्का और दो, वो बच्चा तो यही चलेगा, मोदी को यार को अवाम ने धक्का दे दिया। लेकिन उसने कभी यह भी बताया कि उसका बाप कितना बड़ा करप्ट आदमी है। डिड एवर समबडी ब्रॉट दिस इन अटेंशन ऑफ Bhutto's son? You know, did you ever, Bilawal, how corrupt your father is? Separate yourself from your father. Your father is a corrupt. He had billions and billions of dollars of Pakistan stolen and took it to Switzerland and England. So what we're going to do? The people of Pakistan will come in Ladkana at front of the Bhutto house and kidnap and say, okay, now we have your son Zardari. Now we have your daughter Zardari, come back to Pakistan, bring our all money back to Pakistan. Once you give the Pakistani money, then we will release. That's what you want in Pakistan? That was, I think, Asif, जो ख्वाजा आसिफ है, उसने जो हमाकत की है, उसने जिस तरह से तंज़िया बातें की और जो सियासतदान कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ने बड़ा इसको बैलेंस करके दिया है। डॉक्टर मुशाहिद मसूद ने बड़ा बैलेंस किया है इसको। लेकिन ये how this thing happened in Turkey, it cannot be happened just because over one day. These things are planned. इसके पीछे कोई ना कोई ताकत थी. Which power was behind this? Was it Russia or some other power? Somebody had to be behind it. और उसके फौरन बाद मुख्तलिफ किस्म के बयानात आने शुरू हो गए. अगर कू कामयाब हो जाती तो बयानात डिफरेंट उठते, क्योंकि कू नाकाम हो गई तो बयानात डिफरेंट थे. अब तुर्की से कुछ लोग उड़कर वहां से ग्रीस चले गए हेलीकॉप्टर में बैठ के. यू नो, ग्रीक एंड टर्क आर एनिमी लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान में जैसे दुश्मनी है, ऐसे टर्किश एंड ग्रीक्स में भी दुश्मनी है. साइप्रस की वजह से एक दूसरे की जान के दुश्मन है. वो नाम नहीं लेना बर्दाश्त करते. मैं तो यूनान में रहा हूं, तुर्की का नाम ले लो, तुर्की के झंडे की तारीफ कर दो, तुर्की की तारीफ कर दो, तो यूनानी आपको मारने पे आ जाएंगे. वो तो ऐसे ऐसे अल्फाज गंदी जबान यूज करते हैं कि आप सोच नहीं सकते. वहां पर चले गए. अब इसका मतलब है कि किसी गद्दार की उनको बैकिंग थी, किसी पावर की उनको बैकिंग थी, वरना इतना बड़ा coup नहीं हो सकता. जहाज उड़ रहे हैं सब हवा में, बम बरसा रहे हैं, और उनका सदर अवाम में आ गया कि मैं अवाम से इलेक्टेड हूं. क्या मियां नवाज शरीफ, जिसको अवाम में इलेक्ट किया, क्या वो अवाम में आ सकते हैं? अवाम तो उसकी खिचड़ी पका देंगे कि तूने तो बिजली नहीं दी हमें, तूने पैनमा लीग में करोड़ों रुपए कमा लिए, तेरे बच्चों ने ये कर लिया, तेरे उसने ये कर लिया. अवाम में उसमें अगर 10 लोग उसके हक में होंगे, 2000 उसके खिलाफ होंगे. कभी सोचा मियां नवाज शरीफ ने इस बात को कि अगर यही चीज सियासतदानों ने यूज कर दी, जो तू सोचता फिर रहा है कि तू किराए के लोगों को मियां साहब सड़कों में लिटा देगा फौज के सामने. कल मुझे एक बेवकूफ ने भी कहा कि एक फौज को एक इस पे मिल गया है, एक इशारा मिल गया है. तो वो कहना क्या चाह रहा था कि मियां साहब अब, क्योंकि वो मियां साहब का हमदर्द है, लिटा देंगे. वो ये नहीं बेवकूफ जानता कि मियां की सियासत ने बेसिकली पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है. 1 करोड़ का प्रोजेक्ट 10 करोड़ में बिकता है. तेरे भाई को पैसे दे दिए, मेरे भाई को पैसे दे दिए, इसके बेटे को पैसे दे दिए, हम खुश हैं. हम मियां साहब की तारीफें करते फिर रहे. लेकिन मियां साहब ने मेरे मुल्क में क्या किया है, कैसे मेरे मुल्क में प्रॉब्लम पैदा की है, इस पर कोई नहीं देख रहा. नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट. तो ये सोचने की बातें हैं, ये नहीं है. तुर्की के इस चीज को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए. नो जोक. आने वाले दिनों में ये बड़ी प्रॉब्लम होगी. उनका जो बॉर्डर है सीरिया के साथ, ये बड़ा डेंजरस है. पता नहीं चलता आप शाम में आ गए या आप तुर्की में हैं.
बड़े संगीन हालात इससे हो सकते हैं। आईएसएस के पास कैसे लोग चले जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे, पता नहीं चलता। वो एक दूसरे की जुबान बोलते हैं, एक दूसरे से चेहरे मिलते हैं उनके। हम तो पहचान लेंगे हिंदुस्तानी को पाकिस्तान में कि उनके चेहरे, क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते हुए कि दुनिया को सबसे ज्यादा गोश्त मुहैया करते हैं। हैरत की बात है कि भारत में मुसलमान को या कोई भी शख्स जो गाय का गोश्त खाए उसको कत्ल कर दिया जाता है, मारा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन खुद वो दुनिया की सबसे बड़ी मीट प्रोडक्ट कंट्री है। गाय को काट के, गौ माता को काट के पूरी दुनिया को बेचते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। अब इसको तो बाद में बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। यहाँ का ये जो सिचुएशन तुर्की में हुई है नाजरीन, ये बड़ी संगीन किस्म की सिचुएशन, इसको इतना लाइटली ना लीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क में करप्ट हुक्मरान है। फौज को कमजोर करने का उनको एक तरीकाकार मिल गया है। फौज जो बॉर्डरों पे लड़ती फिर रही तो राहील शरीफ, आप यू हैव ए वेरी बिग टैक्स इन योर हैंड। ऐसा तेरे हाथ में अब मुश्किल आ गई है, ऐसी टैक्स तेरे हाथ में आ गई, इसको हैंडल करो अब। क्योंकि ये करप्ट हुक्मरान जो कि एक मुद्दत से फौज को कमजोर करना चाहते थे, उनको एक मसला आ गया कि हम 400, 400, 4000, 10,000, 20,000, 10, 20, 25 करोड़ अगर हमारे खर्च भी हो जाएंगे तो हु केयर, हम 1000, 10,000, 20,000 लोगों को देख के सड़कों में टैंकों के नीचे लिटवा देंगे और कहेंगे देखो, मीडिया को कहेंगे देखो, पूरी इंटरनेट मीडिया बुला लेंगे। और फिर दुनिया जो आजकल कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं, इस तरह की हैरत अंगेज करार दे और दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर देगा, इधर से उधर से उधर से, तीन तरफ से ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और उधर से अमेरिका के मिसाइल आएंगे। सुनो, सोचो, ये बहुत खतरनाक हालात है रहील शरीफ मुल्क के लिए। ये करप्ट हुक्मरान कुछ भी कर सकते हैं और यही करप्ट हुक्मरान में से कुछ उठकर मियां नवाज शरीफ को हटाने के लिए अगर लाखों लोगों को लेकर सड़क पर आ गए, मियां नवाज शरीफ को और इन करप्ट हुक्मरानों को, पुलिस वालों को, कस्टम वालों को उठा के गार्बेज के ट्रकों में फेंकना शुरू कर दिया इन्होंने, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा पाकिस्तान में। It will be a problem of law and order in Pakistan. So it has to be taken very seriously. हमें बहुत seriously इसको लेना पड़ेगा, बहुत seriously. Situation in Turkey is no joke. अगर हम ये सोच रहे हैं कि जी दुनिया को पता चल गया कि अवाम की ताकत क्या है, तुर्की में एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट थी। तुर्की की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने अवाम की हेल्प की, उसने मुल्क को डेवलप किया। आपके मुल्क में तो आज तक काला बाप डैम ना बना सके आप, वो भी सिंधी डाकुओं ने नहीं बनने दिया, या पंजाब के मुख्तलिफ डाकू जो मिले हुए थे उन डाकुओं ने भारत से पैसा लिया, दूसरे मुल्कों से पैसा लिया और उसको बनने नहीं दिया। सिंधी डाकुओं ने पंजाबी या जो भी बलोची जो भी डाकू थे उसमें डाकू दुश्मन पाकिस्तान ने उन्हें काला बाप डैंग नहीं बनने दिया और आज पाकिस्तान में फिर सैलाब आ रहे हैं। अल्लाह, how are we going to develop that country when there's crooked politicians are sitting जो एक टेलीफोन कॉल पे हिल जाते। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर काउंसिल का उसका प्रेसिडेंट बनाया हुआ, क्या किया कश्मीरियों के लिए उसने? देखो कि तुर्की के सदर ने मौलाना फजलुर रहमान एक ही रात में क्या करके दिखा दिया कि तुम ऐसे लीडर बन सकते हो। तुम्हारी तो 6 फुट की दाढ़ी हिलती है ऐसे, क्या ऐसे हिलती है तुम्हारी 6 फुट की दाढ़ी। तुम्हारे के दीन ईमान का पता नहीं होता, इधर पैसे दिए, इधर पैसे दिए, उधर। कल तुम अमेरिका के खिलाफ, तुम तो इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करने के तैयार हो जाओगे इफ द इजराइल गिव यू द मनी। वी हैव नो प्रॉब्लम विद द स्टेट ऑफ इजराइल टू रिकॉग्नाइज देम। व्हाई वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग स्टेट ऑफ इजराइल? वी हैव नो वॉर विद इजराइल। Arab countries have diplomatic relations with India. We have problem with India. Pakistan have no problem with the state of Israel. I think it's about time the government of Pakistan should consider, put a bill in the parliament, they should recognize state of Israel as a state. किस चीज से अरबों से डरे हुए? क्या अरब कर लेंगे? अरबों को कह नहीं सकते if you do not want us to recognize state of Israel then you terminate your relationship with India. हमारी उसी तरह से हिंदुस्तान से दुश्मनी है जैसी तुम्हारी स्टेट ऑफ इजराइल से। हमें उसी तरह से हिंदुस्तान ने तंग कर रखा है जैसे फलस्तीनियों को उसने फलस्तीन में तंग कर रखा है, हमारे कश्मीरी भाइयों को इसमें कश्मीर में तंग करके। लेकिन हमने तो ये नहीं करना। लेकिन ये सिचुएशन अगर तुर्की में होती तो तुर्की का सदर उसे किसी और तरह से हल करता। कोर्ट की प्रॉब्लम है ना वहां पर, इराक के साथ उनका बॉर्डर मिलता है टर्की का, शाम के साथ टर्की का बॉर्डर मिलता है, तमाम एयरपोर्ट बंद कर, यहां तक के बल्गारिया ने, जो बल्गारिया था, यहां तक कि रोमानिया ने, यूनान ने, सब ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। तुर्की हॉट हो गया था चंद घंटों के लिए, हमारे पाकिस्तानी में फंस गए। उसके बाद जब टर्किश ने, ये भी अजीब मामला है, जब टर्किश गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट क्लियर कर दिया तो जब नवाज शरीफ को होश आया नवाज शरीफ को उस वक्त, और कहा पीआईए का तैयारा जाए पाकिस्तान को लेकर, उससे पहले
जब नवाज शरीफ ने कहा कि PIA का तैयारा जाए और पाकिस्तानियों को इस्तांबुल से जो फंसे हुए लेकर आए, तुर्किश एयरलाइन ने क्लियर कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि 12 बजे के करीब फ्लाइट पाकिस्तान पहुंच रही है, पहली फ्लाइट। उसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर भी पहुंचेंगी। अब यार नवाज शरीफ को लेट समझ क्यों आती है? दुनिया को देख के फैसले क्यों करता है वो? उसके बाद अपनी अकल नहीं है क्या? उस वक्त मियां साहब आपको अकल आएगी जब पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे आ जाएंगे। यही एक नाकाम सियासतदान इमरान खान चाहता है। वो कामयाब नहीं हो रहा था, अब उसके सामने टर्किश की सिचुएशन आ गई। अब वो चंदा इकट्ठा करेगा, 2-4 करोड़ जैसे आप फेंक सकते हैं वो भी फेंक देगा। या क्या होगा, 2-4 करोड़ आप फेंक देंगे, 2-4 करोड़ वो फेंक दे, अवाम अवाम के साथ टकरा जाएगी। आप अपने वहां बैठे रहेंगे अपने रायमंड में, वो अपना वहां पर इस्लामाबाद में बैठा रहेगा और अवाम पिट जाएगी, सड़कों पे गोलियां चलेंगी, अवाम मरेगी। दैट्स व्हाट यू वांट, दैट्स नॉट द टर्किश स्टाइल। In Turkey, the president of Turkey was a decent, he have helped to develop his country. He had delivered to his country, Mian Nawaz Sharif, what you had delivered to Pakistan. Loans, कि हर पाकिस्तानी का बाल कर्जे में झकड़ा गया है। What you have delivered in Pakistan, friendship of Modi, कि एक दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को तूने अपनी नवासी की शादी पे घर बुला के उसको एंटरटेन किया। क्या उसने बुलाया कभी तुम्हें अपने इंडिया में? एक दुश्मन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को साड़ियों और आमों के तोहफे भेजते हो। मियां साहब सोचो, को अकल दे नाखन लवो, तुर्की से सीखो, कुछ अवाम को डिलीवर करो कि इसी तरह अवाम आपके हुक्म के पीछे आपके खड़े हो जाए। अगर आज पाकिस्तान में इलेक्शन करा दिए जाए, फेयर इलेक्शन, तो मियां साहब यू वोंट इवन गेट 5% ऑफ द वोट फॉर 19 करोड़ अवाम में से, बिकॉज यू हैव नॉट डिलीवर। बिजली तो आ नहीं रही वहां पर, इंडस्ट्री चल नहीं रही वहां पर, और इसाक डार आपका जो बेटी का ससुर है उसको आपने सारे जुर्मों में माफ कर दिया। दिस इज व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी, दिस इज यू कॉल जस्टिस। मैंने आपसे एक दिन कहा था पिछले प्रोग्राम में कि इंतकाम और इंसाफ में फ़र्क होता है। इंतकाम को छोड़िए, इंसाफ की तरफ चलिए। मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी नाजरीन, कि उसने नवाज शरीफ और उसके भाई को सजाए मौत नहीं दी। अगर उसने ज़िया साहब की तरह जिसने भुट्टो को सजाए मौत दी, तो मौत दे दी होती तो आज पाकिस्तान का नक्शा डिफरेंट होता। मैं सच कह रहा हूं, बच के मियां साहब, क्योंकि खुदा ने इनकी मौत लिखी हुई नहीं थी। मुशर्रफ क्या कर सकता था? अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आई थी वो मौत। अल्लाह ताला की तरफ से जब तक कोई काम नहीं होना होता वो नहीं होता। खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब ये क्या कहें कि करप्ट हुक्मरान हमारे ऊपर थोप दिया है। इसके ऊपर बहुत सी हजूर की बातें मिलती। हज़रत अली के फरमान के एक ऐसी हुकूमत जब वो करप्ट हो जाती है तो करप्ट हुक्मरान ही मिलते हैं, जब आवाम करप्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हुक्मरानों के करप्ट होने से पहले हमारी आवाम करप्ट। धोखाधही में हमारा जवाब नहीं, लूट मार में हमारा जवाब नहीं। आपको एक किस्सा बताऊं यहाँ पर। एक आदमी था, उसने किसी को कर्ज दे दिया। कर्ज लेने वाले ने कहा कि मैं 10-15 दिन में या महीने में ये कर्जा वापस लौटा दूंगा। कई साल गुजर गए। जब वो कर्जा लेने जाता था तो वो उसकी पिटाई कर देता था। एक दिन उसने उसे अपने ही गिरजे में देख लिया पादरी के साथ। वो पादरी के पास गया, कह रहा पादरी इसने मुझसे आज से 10 साल पहले कर्जा लिया था। जब भी मैं मांगने जाता हूँ तो मुझे पिटाई कर देता है। मैं गरीब हूँ, मेरे बड़े बुरे हालात हैं, मेरा कर्जा वापस दिलवा दोगे? पादरी ने कहा अच्छा सुनिए उसकी बात। एक खत लिखा, कहना इसे खोलना ना, जाकर उसको दे दो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा वो कर्जा वापस कर देगा। वो आदमी उस खत को लेके गया, उस बंदे ने पढ़ा के पादरी ने दिया और रोने लगा, डारे मार के रोने लगा और उसके हाथ जोड़े ला के उसको पैसे दे दिए, उसका कर्जा वापस दे दिया और चीखें मार मार के उससे माफिया मांग रहा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। बंदे ने पूछा यार 10 साल से तुमसे कर्जा मांग रहा हूं, तुम मेरी पिटाई करते थे, आज पादरी ने 2 लाइनों का खत भी नहीं है जो तुम्हें लिखा है और तुम रो रहे हो, माफिया मांग रही हो, मेरे पैसा होती है। खत में क्या लिखा है? तो उस बंदे ने खत दिखाया, उसमें लिखा था पादरी ने कि तुम तो हजरत ईसा के मानने वाले हो, कर्ज लेकर वापस नहीं दे रहे हो, क्या मुसलमान हो गए हो? अस्तगफिरुल्लाह, क्या मुसलमान? ये लोग सोचते हैं मुसलमानों के बारे में। सबसे ज्यादा करप्ट हम खुद हैं। क्या हम हजरत उमर बिन खुत्ताब की तरह क्यों नहीं बन सकते? और सहाबे की तरह क्यों नहीं बन सकते? हर शख्स नबी बनने के चक्कर में कोई सहाबी बनने के भी लिए कोशिश करे। हर शख्स ये कहता है हजूर ने ये किया था मैं करूंगा, हजूर ने ये किया था, हजूर ने किया था, सहाबा ने किया था, वो हजूर ही बनने के चक्कर में वो सहाबा की तरफ देखो, वो तो बनने की कोशिश करो। इंतकाम और इंसाफ में फर्क देखो।
कहीं ये ना हो नवाज शरीफ कि जैसे तुर्की में आवाम निकलकर सड़कों में आए हैं, इस तरह से आवाम निकलकर सड़कों पर आकर और सारे करप्ट सियासतदानों को, corrupt law enforcement officer, all corrupt officials of the government of Pakistan, they pick them up and throw them in garbage. Think what happened in Turkey can have a very long time effect on the world politics. But I think Mia Nawaz Sharif will use this thing another way. Anytime if the military try to come in a power, Mia Nawaz Sharif will put, or whoever politician will take, people of Pakistan providing them the money, say come on the street, lay down underneath the tank, stand up from the army, they won't shoot you. और हमारे बच्चे कश्मीर में ऐसे ही मरते रहेंगे, उस पर कोई बयान नहीं आएगा। नाजरीन, सोचने की बात है। छोटा सा प्रोग्राम था आज का, सिर्फ इसलिए किया था कि तुर्की की इस सिचुएशन को डोंट टेक लाइटली। इसके बहुत ज्यादा सख्त संगीन इफेक्ट्स होंगे आने वाले टाइम पर, और खास तौर पे हमारे जैसे मुल्क के अंदर, हमारे जैसे करप्ट हुक्मरानों के साथ, हमारे जैसे करप्ट ऑफिशियल्स के साथ बड़े संगीन इसके नताइज निकलेंगे, और हमारे जैसी करप्ट अवाम के साथ बहुत संगीन नताइज निकलेंगे। जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हुआ, इट्स ओवर। इससे कुछ सबक सीखे हम, और मियाँ साहब इससे ये भी सबक सीखें कि अगर आप ये सोचते हैं कि फौज के सामने लाके आपको आवाम को खड़ा कर देंगे, कहीं ये ना हो कि सियासतदान आपके सामने लाके खड़ा कर दें और आपको और आपके रिश्तेदारों को, आपके भाइयों को, आपके करीब जो लोग हैं, आपके जो पॉलिटिशियन, MNA, MPA, खासतौर पर फैसलाबाद का वो खाना, उसको उठा के कहीं गार्बेज में न फेंक दें। इसलिए अकल के नाखन लीजिए, आवाम के लिए काम कीजिए, आवाम से सच बोलना सीखिए। नाज़रीन, मेरे अल्फाज बहुत सख्त होते हैं, अगर कोई बात मैंने सख्ती से कह दी हो जो किसी को नागवाज गुजरी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जब मैं टेलीविज़न चलाने लगा था ना, आपको बताता हूँ कि लोगों ने कहा था बहुत मुश्किल काम है, तो मैं एक ही बात कहता था, मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, और जब मैं घबरा जाता था, छिपा जाता, मेरी माँ कहती थी तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए, कब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। नाज़रीन, आपने अपने दिखती हुई आंखों से मुझे देखा, सुनते हुए कानों से मुझे सुना, धड़कते हुए दिल से मुझे महसूस किया। अब इस चलते हुए दिमाग से सोचें कि जो बातें मैंने की हैं, क्या उनमें कोई सच्चाई है? सच्चाई है तो फिर आप मेरा साथ दीजिए, जी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि ये तुर्की की सिचुएशन से हमें सीखना है। कहीं ये ना हो कि मियाँ नवाज शरीफ और दूसरी करप्ट पॉलिटिशियन जो हमारे मुल्क में हैं वो इसको यूज करें फौज को कमजोर करने के लिए। और कभी भी अगर फौज, अब इसमें फौज को तो कभी भी, आई डोंट बिलीव इन मार्शल लॉ, आई एम अ वेरी एंटी मार्शल लॉ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी लाइक अमेरिका, not like Pakistan, not like India. India had no democracy, it's fake. वहां तो कोई राइट्स ही नहीं है, minority है, no rights in India, you can't even eat cow meat, they'll kill you, yet they will export the cow meat to the Christian country in the world. So that's not a democracy. उसके अलावा मजहबी आज़ादी नहीं है. Oh, everybody will be Hindu. In America, did anybody say that everybody must become a Christian to live in America? This is a country of greatest freedom. America, no country is better than the United States. This is the greatest country. We say lots of things about America. Lots of things we talk about against our president in Congress. Why? Because we have freedom. One of the best system in the world. Our constitution, greatest constitution in the world. That's the reason I'm a strong believer of the Constitution of the United States and red, white, and blue flag. This red, white, and blue flag, I support that flag and I will die for America if anybody attack on America. This is my country and I will defend the United States of America. And every American who believe in America, who believe in the Constitution of the United States of America and the red, white, and blue flag, they should stand behind that flag and support our armed forces, support our government when time comes when somebody attack the United States. Same way should be in Pakistan. You should build a strong Pakistan, democratic Pakistan, corruption-free Pakistan, and world should learn from this situation of Turkey. कश्मीरी बच्चे भी अगर इसी तरह से हजारों लाखों की तादाद में भारत की आर्मी के सामने आके खड़े हो जाए, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की फौज बना दे, उनको ट्रेनिंग दे। और जब कश्मीरियों पर मजालिम किए जा रहे हैं, जिनको मारा जा रहा हो, आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे, तो वो भी आके ऐसे भारत की हुकूमत बने, 2 या 3 दिन में कश्मीर आजाद हो जाएगा।
अगर कश्मीरी भी ऐसे ही बाहर निकला है जैसे तुर्की में अवाम निकले हैं और फौजों के साथ घोंसों से, सोटियों से, पामों से लड़ने लगे, तो भारत की फौज 1 मिलियन तो सारी फौज है। तमाम 28-29 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान अगर बाहर निकल आए सड़कों पे, तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। हैदराबाद दक्कन को आज़ाद करवा लेंगे, पंजाब को आज़ाद करवा देंगे, कश्मीर को आज़ाद कर देंगे, तामिलनाडु आज़ाद, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दिल्ली जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान में वापस आ जाएगा। बम्बे जो हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। ये किया जा सकता है। अवाम सड़क पर अगर आ जाए तो सोचें, टर्की के इसको सीरियसली लें। इट्स नॉट ए जोक। जो टर्की में हुआ है, इसको इट कैन हैव अ वेरी सीरियस इफेक्ट्स इन टाइम टू कम। Corrupt politicians can use for their benefit. Corrupt army officials can use for their benefit. It can be both ways. Let's pray to Allah that there's a peace in the world, that we can live in a peaceful society. Let's work together to kill every terrorist in the world. No terrorist should exist in this world. Back up the United States Armed Forces. Back the United States law enforcement. Inform if you know something. Having said that, I will say only one thing. God bless America. God bless Pakistan. चलता हूँ, चलने से पहले हमेशा आपको एक बात कहता हूँ. Forget about the rest. War TV is the best. Allah Hafiz. Pakistan Zindao Paindabad. जाग उठा है सारा वतन, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन, साथियों, मुजाहिदों, आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे।